Hello and welcome to our program. Life is a challenge. For most of us, however, whenever life bowls us a googly, we often get stumped or clean bowled. However, there are a few people in the world who make victory a habit, who challenges all the time. Please welcome a very special person on our show today, Naveen Gulia. Naveen, welcome to the program. Thank you so much. You call yourself an adventurer, social worker, and a writer. Which one of these do you like to be known as the best? Adventure has become a routine with me. That's a way of life, and maybe that's one thing which leads to all others. राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है जीवन है ये युद्ध है ये युद्ध है ये युद्ध है राह चलते मिट गई आस वो तू नहीं कदम तले जो दब गई घास वो तू नहीं समय से पहले बुझ गई प्यास वो तू नहीं आंधी में बिछ गई कपास वो तू नहीं विराट एक वृक्ष तू शक्ति से समृद्ध है जीवन है ये युद्ध है ये युद्ध है ये युद्ध है आंधियां चल रही राह है खल रही आंधियां चल रही राह है खल रही हिम्मत आंखें मल रही लौ फिर भी जल रही हार को न मान तू राह को पहचान तू हार को न मान तू राह को पहचान तू सृष्टि का अभिमान तू है वही इंसान तू साहस से संकल्प कर विश्वास तेरा दृढ़ है जीवन है ये युद्ध है ये युद्ध है ये युद्ध है I think how you see life, how you see challenges, how you see victory over the self. So tell us a little bit about your journey. I was known as a weak child, a weak student who was not very good in running, not very good at sports, not very good at studies, and from there it led to a sort of frustration that I want to be better. Why should I always be called a weak child or a weak student? And I started working, and that's when I discovered sports. I worked in the field of sports. I excelled at quite a number of sports, plus I improved at studies and everything. So that was one, and but the best thing that happened to me in life was sports, because in sports, sportsmen way of looking at things is different. A normal person, if there's a hurdle in his way, he says, oh, another hurdle. And if a sportsman sees a hurdle in his way, he says, ah, another hurdle. So a hurdle inspires him, a challenge inspires him. So a sportsman does not mind hard work. He needs, like I say, life is a game of football. You won't like playing in an open field. You want 11 players to oppose you. And if you are a good player, you would want 11 good players to oppose you. So that's what makes life interesting, the challenges, the difficulties about life. So as a sportsman, I was always prepared to face challenges. I was taking risks in life. I was taking, because I say, if you take risk, if you take chances, there's a probability you may win or you may lose. But if you choose to play safe, then you have actually chosen to lose. So it's better you take risk and take some chances in your life. That's what I believe in. Right. So the way you, Naveen, see opposition or see challenges, that's truly different, because an accident happened, changed your life forever, and you took that as a challenge and came out victorious. In fact, victorious in so many areas where people with normal abilities also seem to fail. I could say that maybe I am like this, I am made like this, but I consciously know why I am like this. As a child, whenever I used to see some, hear some story or read some story of somebody who had faced serious challenges in life and succeeded, whenever I used to read that kind of a story, and I used to say,
if ever in my life I have to face such a difficulty or a similar challenge, I would also prove myself. Whereas usually people, when they read such stories, they say, oh, I would never be able to do that. So when you are telling you may not have to face the same difficulty as that, you may have to face something else, but when you are telling yourself you cannot do it, then at some point of time you are going to give up. So I was always prepared to face any challenge in my life, and that's what helped. And second thing is that whenever such a loss or such an injury, such a loss happens to us, people usually ask the question, why me? And I personally find it a stupid question. Why not me? Why wouldn't it be me? Why am I the chosen one? Why would I not have to face difficulties? The whole world is suffering, people are facing challenges, difficulties. Why wouldn't I be facing them? Why was I so naive to think that I would not have to face difficulties in my life? Right. So, and I say, as a matter of probability, difficulties are to come to someone. Losses are to come to someone, and if they came to me, all the more better. You know how you see disability, and you earlier in a conversation had said that you want to be seen as a social worker, not as a disabled person who's into social work. How do you see disability? We are all disabled in one way or the other. All of us cannot cook our own food, all of us cannot stitch our own clothes, all of us cannot repair our own cars. We depend on other people to do some things. Right. And that's how the human society works. So we all are disabled in some ways. And I actually don't think in terms of disability. Basically, it's in the mind. I say our mind and our body both have infinite ability, and it's only our thoughts which prevent us from doing what we want to do in our lives. If we think we can, we can. If we think we cannot, we cannot. And that's how. And whenever I have been stopped in my life, it was only because I thought I would not be able to do it, not because I was actually incapable of doing it. So I actually don't think in terms of disability at all. Right. As you see challenges, you've also seen for a large part of your life records. You've broken so many records. In fact, you're known to be breaking records periodically. What does that mean to you whenever you break a record? You see, we all have our own philosophies and things we follow in our life, and speaking them, they sound good to hear, but the thing is, can I prove them on ground? Otherwise people would say I'm just talking. So I wanted to, to begin with, I wanted to do something, achieve something which proved my concept of infinite ability. So I thought, let me think of something which is considered impossible to do. So I thought of driving non-stop from Delhi to Khardungla, which is the highest metal road. Nobody would think of driving from here to Khardungla non-stop. I knew that it was an impossible target for anyone, but I knew I could do it. It was a possible target for me. Right. But when I approached the record books, they added a different mountain pass, Marsemek, which is, it does not even have a road. It's higher, it does not even have a road, and much tougher. Very few people have been able to reach there. So the target became impossible for me also, actually. So but that is it. Life does not offer you opportunities on your terms. You have to take it on the terms it is provided to you. So do you ever get angry with life? No, not angry with life. I don't think. I've been very happy person throughout my life. I always feel I'm the most fortunate person alive, just because I got the opportunity to be Naveen Gulia, and that's the way we all should think about ourselves. Wonderful. आपने इतने रिकॉर्ड तोड़े, तो वो कौन सा एक रिकॉर्ड है जिसके आप you're really proud of it, गर्व है आपको उस पर? जब मैंने ये यहाँ से मतलब नई दिल्ली से मार्सेमेकला तक जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है 18,632 फीट हाइट तक, वहाँ तक मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई 55 घंटे में. सो वो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी. उसमें मेरे अगेंस्ट सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट थी, सारे सर्कमस्टेंसेस. पहले तो वो टारगेट ही इम्पॉसिबल था. उसके बाद जो गाड़ी है वो बहुत 2-3 दिन पहले ही मुझे मिली. फिर उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन्स रास्ते में, क्योंकि टेरेन और ड्राइविंग कंडीशंस इतनी थी, गाड़ी में भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ भी थी. जो मेरा क्रू था उसमें 1-2 लोग बीमार भी हो गए थे. सो हर चीज़ अगेंस्ट जा रही थी, और उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट मैंने उस टारगेट को अचीव किया. तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था, और एक पॉइंट ऑफ where I actually realized myself, my own existence. So I was humbled also, and I was proud also after that. Right.
तो जब भी कोई दिक्कत आती है और लगता है कि अब नहीं जा सकते आगे, बस अब इसको अबैंडन करना पड़ेगा, तो वो कौन सी चीज़ थी जो आपको अगले पड़ाव तक लेके जाती थी? मैं हमेशा एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मुझे तो मुश्किलें चाहिए, मेरा मुश्किलों में विश्वास रहा है। और जैसे मैं कुछ शायरी वगैरह लिखता हूँ तो एक शायरी है जो मैंने मुश्किलों को ही डेडिकेट करी है, वो ऐसे है, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ़ मुझे, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ़ मुझे, नई कोई चुनौती तो दे कि ज़िंदगी को और जीने को जी चाहता है। कुछ तो आंधियों को उठा, कुछ तूफ़ान तो हों कि आसमानों को फिर छूने को जी चाहता है। Wonderful. So that's what I believe in. That's the role difficulties play in our lives. So as you see yourself today and you see yourself as a young 18-year-old or 17-year-old, some critical life learnings which have come your way by virtue of the challenges you've faced? Everything, difficulties are the best teachers. You throw yourself into difficulties. I throw myself into, as human beings, our natural tendencies to be lazy. It's a natural tendency. So you have to throw yourself in the situation where you have no choice but to perform. People don't find it easy to go for a 5-kilometer walk every day, but if they go to Vaishno Devi, they climb 14 kilometers. Right. So when you put yourself in a situation, you perform. So that's why I believe in throwing myself into difficulties and challenges and then coming out of them. Right. All of us, whether we're working in the corporate sector, whether we are at home, whether it's about children, about colleagues, we keep saying motivation chahiye. We need something to motivate us. And I think at one level we forget that life by itself offers so many more motivations. How do you find motivation in life? मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत है. I'm in love with life, every moment of it. Sometimes one friend said that wish there was a miracle. So I said, what could be a bigger miracle than life itself? Every moment of it. The fact that we are breathing, the fact that we are seeing, the fact that we are listening, experiencing life, can there be a bigger miracle than that? And sometimes I say, people, let's be happy to begin with. Right. And people would say, what do I have to be happy about? I say, hold your breath for 2 minutes, you'll come to know what do you have. So we have that's what. So that my love with the fact that I'm in love with life is my biggest motivating factor. तो निराश कभी नहीं होते या होते हो? पता नहीं मैं वैसे बना ही हूँ या क्या है, लेकिन मैं कभी निराश नहीं होता हूँ. तो कभी वैसे मज़े लेने के लिए, आनंद लेने के लिए मैं मुकेश के गाने, तलत महमूद के गाने सुन लेता हूँ, तो उसमें दर्द का मज़ा ले लेता हूँ. अदरवाइज़ मैं वैसे निराश नहीं होता हूँ किसी चीज़. आप सोशल वर्क को किस नज़रिए से देखते हैं? ये समाज के प्रति कुछ काम होता है, स्वयं के प्रति काम होता है, समाज और आप में जो रिश्ता है वो सोशल वर्क से कैसे पूरा होता है? हमें हमेशा समाज ने, मैं ये मानता हूँ कि मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया है. मुझे एक मौका दिया है सीखने का, देखने का, जानने का, इतने लोगों से मिलने का, सब कुछ जो कुछ भी सीखा है समाज से सीखा है. तो वो देना समाज को कुछ जो थोड़ा मैं दे सकूं, मतलब इतनी तो मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकूं वो मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता, खुशी, शांति सब मिलती है उससे. और क्योंकि हम एक लेवल ऑफ ग्रोइंग होती है कि हम एक स्तर तक तो हम झपटने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे को मिल जाए कितना, लेकिन तब तक हम बहुत परेशान रहते हैं, विचलित से रहते हैं, रेस्टलेस से होते हैं हम, जब तक हम झपटते रहते हैं. जैसे ही हम देना शुरू करते हैं हमें एकदम से शांति का अनुभव होता है. वो एक तपस्या की तरह होती है. तो ये मेरी महानता नहीं है कि मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैं दे रहा हूँ, अगर मैं बच्चों को कुछ देता हूँ और मेरी कुछ उनकी मदद करने की वजह से बच्चे कामयाब होते हैं, खुश होते हैं, जब बच्चों को नए स्कूल बैग मिलते हैं, नई स्कूल यूनिफॉर्म मिलती हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो आई थिंक मुझे कई 100 गुना ज़्यादा मिलता है उससे जो मैं कर पाता हूँ उसके बदले में. तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है इसमें. Right, because a lot of people believe that social service is for society, but I think it's primarily for the self, for the happiness that it gives you. For yourself, very much. Right, right. युवाओं से तो काफ़ी मिलते हो, बातचीत करते हो, उनको भी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में होप्स, एस्पिरेशंस मिलती हैं. तो आपको क्या लगता है कि today as a young generation, what are some challenges that young people are facing and what are their hopes and aspirations? See, the main thing is, मैं जैसे कहता हूँ कि खुदा किसी की ज़िंदगी अगर मुश्किल करनी हो तो उसे आसानियाँ दे देता है. तो आज के यंगस्टर्स को कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से वो बर्निंग डिज़ायर, वो भूख, वो हंगर जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो थोड़ी कम हो जाती है.
दूसरा, उनको जो रोल मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको तुरंत से कामयाबी मिल गई है या ऐसे है, तो वो क्विक सक्सेस में बिलीव करते हैं, जबकि क्विक सक्सेस नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। सक्सेस हमेशा तभी आती है जब उसके में बहुत मेहनत और बहुत समय लगाया जाए, और उसका महत्व भी तभी होता है। तो ये यंगस्टर्स के सामने एक चैलेंज है। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज है कि आज की एज है एज ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें यंगस्टर्स का विश्वास सब्सटेंस पे से हट गया है, उनका विश्वास मार्केटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा चला गया है। जबकि मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो आप कर रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप मूवी बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें सब्सटेंस क्या है। एक अच्छी की हुई चीज़ 1000 साल बाद भी जानी जाती है, जबकि मार्केटिंग वाली चीज़ 1 महीने के बाद भूल जाते हैं लोग। तो ये एक चीज़ है जो यूथ के लिए मुश्किल है कि सब्सटेंस की वैल्यू समझना, कि सब्सटेंस की वैल्यू क्या है। सक्सेस या सफलता का मापदंड क्या है? मेरे उससे बहुत सीधा सा मापदंड है। मैं समझता हूँ कि आप कितने कामयाब हो, कितने सफल हो, वो इस बात से समझा जा सकता है कि आप हाउ मच एट पीस विद योर सेल्फ यू आर। आप कितने शांत हो, आपका मन उतना ही शांत होएगा जितना आप कामयाब हुए हो लाइफ में। वो कामयाबी का मापदंड है कि आप कितने खुश इंसान हो। गांधीवादी मानते हो अपने आप को नवीन? क्यों? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये शब्द जो है ना वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक मतलब समझना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गांधीयन फिलॉसफी को समझने के लिए भी बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है। वो इतनी सीधी नहीं है कि आपने एक सुना और समझ में आ गया, एक तरह की टोपी पहन लिया, लिबास पहन लिया तो आप गांधीवादी हो गए। क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। सरकार बदली करना गांधीवादी विचारधारा नहीं है, ठीक है। लोग आज भी मतलब क्योंकि मैं यंगस्टर्स में, युवाओं में देखता हूँ कि अगर गांधी की बात होती है तो लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है, कहीं सुनी बात कह देते हैं जो उनको सुना हुआ है। ये नहीं समझते कि वास्तविकता क्या है उसके पीछे। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तब आप जीतते हैं। जब आप दूसरों के ऊपर गाली गलौज करते हैं, उसको उल्हाना, शिकायत, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये गांधीवादी विचारधारा नहीं है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। आप अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ सुधारिए। तो हमें समाज को एक बेहतर समाज बनाना है, और अगर आप समाज बेहतर बनाएंगे तो सरकार अपने आप बेहतर होएगी। सरकार तो समाज का प्रतिबिंब होता है बेसिकली, उसको हम दूसरे देश से इम्पोर्ट नहीं करते हैं, वो हम में से ही आते हैं जी। तो इसलिए हमारे को अपने समाज के ऊपर काम करना है और उसको बेहतर बनाना है। जैसे जब अन्ना मूवमेंट हुई तो सब लोगों ने टोपी पहन ली, मैं भी अन्ना। तो मैंने बोला इतना आसान है क्या अन्ना बनना? क्या आपने टोपी पहन के उस पर मैं भी अन्ना लिख लिया तो बन गए? 35 साल काम कौन करेगा बनने के लिए? उसके लिए आपको 35 साल अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाके काम करना पड़ेगा। तो कितने युवा हैं जो 35 साल अपने गांव में जाके काम करने को तैयार हैं? फिर मैं मान लूँगा कि आप भी अन्ना हो। तो वो जो 35 साल का काम है वो कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? ये मेरा मानना है और ये युवाओं को सोचना चाहिए। तो जब आप युवाओं से इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम अपने युवाओं को धरती के साथ और जोड़ें? मेन ये है कि उनका सही चीज़ में विश्वास जगाना, कि सही चीज़ को करना ज़्यादा आवश्यक है। और आज के उसमें यही, अब जैसे मेरे साथ भी है, मेरे पास विकल्प है कि या तो मैं पॉपुलर चीज़ करूं जिससे मैं अचानक से पॉपुलर हो जाऊं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें करूं, ऐसी चीज़ें करूं, हंगामा करूं, तो मैं अचानक से 2 महीने में, 1 महीने में नाम हो जाएगा मेरा। या मैं वो धीरे धीरे मेहनत वाली चीज़ करूं। जैसे कि मैंने अन्ना हज़ारे की कहानी तब पढ़ी थी जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था। तो रीडर डाइजेस्ट में एक आर्टिकल आया था वाई गॉड सेव्ड अन्ना हज़ारे, तो मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे काम करके वहाँ तक वो पहुँचे कि वो एक परिवर्तन ला सके अपने क्षेत्र में। तो वैसे काम करें तो ये चीज़ का जब युवाओं में विश्वास आएगा कि ये सही रास्ता है, ऐसे समाज बदली होता है, ऐसे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है, तब वो चीज़ बेहतर हो पाएगी। और ये चीज़ युवाओं को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल पड़ता है, किंतु मैंने ये चुना है। अब मैं इसमें सफल हूँ या नहीं हूँ इससे मेरे को कोई वो नहीं, लेकिन मेरा रास्ता ये है। तो जब युवाओं को हम एक युवा शक्ति का नाम देते हैं, इट्स वन जनरल टर्म वी यूज फॉर यंग पीपल टुडे, युवा को शक्ति बनाने का जो ये प्रोसेस है, इसमें कौन सी 3-4 चीज़ें पे हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी सही चीज़ में विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। उनको मार्केटिंग की एज में उनको बहुत सारी चीज़ों में, गलत चीज़ों में विश्वास जा रहा है, तुरंत कामयाबी। विश्वास तो नवीन उस पर होता है जो आप देखते हैं। तो देखने के जो रोल मॉडल्स जैसे आपने कहा वो ऐसे हैं
कि इट्स अबाउट इंस्टेंट सक्सेस, क्विक रिटर्न्स, क्विक रिजल्ट्स। आई मीन आज मैं यूँ कल तक मुझे ये सब मिल जाए। तो जब आसपास जो दूसरी अट्रैक्शंस या probably wrong role models are so many more, then how do you make them believe? इसीलिए हमारे देश को, हमारे समाज को बेहतर रोल मॉडल्स की आवश्यकता है। बेहतर, क्योंकि क्या है कि आजकल लोग अटेंशन सीख करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश करते हैं। तो सारी दुनिया लाउड होती जा रही है। उस लाउड के बीच में जो सच है, क्योंकि सच हमेशा शांत रहता है, वो कम बोलता है, उसकी आवाज़ हमेशा नीची होती है। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति जितना गलत होता है उतना वो ऊंचा बोलता है, तो वो हल्के उसके, इट्स ऑलवेज मोर काम। जो सच्चाई है और अच्छाई है वो हमेशा काम होती है। तो वो जो काम रोल मॉडल्स हैं वो नीचे दब के रह जाते हैं उस शोर के बीच में। तो युवाओं के सामने उन काम रोल मॉडल्स को, जो रियल रोल मॉडल्स हैं, जो बहुत शांत, एक बाबा हैं जो गंगा किनारे रहते हैं और वो गंगा में से डेड बॉडीज़ निकाल के डेली क्रिमेट करते हैं अपने हाथ से, काम कर रहे हैं डेली। वो कहीं जा नहीं रहे, मीडिया में नहीं जा रहे, कहीं शोर नहीं मचा रहे, बस उनके हाथ से जितना काम डेली होता है वो उतना गंगा को साफ़ करते हैं। तो ये एक रोल मॉडल है जो कि शांत है, शोर नहीं मचा रहे। ऐसे रोल मॉडल्स पूरे देश में हैं लाखों की तादाद में हैं। ऐसे रोल मॉडल्स जो हैं वो युवाओं के सामने आने ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते उनके जो शोर मचाते हैं। जब आपने ये अपनी किताब लिखी इन क्वेस्ट ऑफ द लास्ट विक्ट्री, तो ये आखिरी जीत, ये लास्ट विक्ट्री किसकी विक्ट्री है और कहाँ, किस पे है? मेरा ये कहने का है कि लास्ट विक्ट्री जो है वो कोई टबू चीज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम हटें, क्योंकि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम सब एक सीमित समय के लिए यहाँ हैं और हम सबकी एक अंतिम जीत भी होगी। हम हमेशा नहीं रहेंगे इस दुनिया में। और तो एक तो वो अंतिम जीत है, दूसरी वो अंतिम जीत किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, वो अपने ऊपर है। लास्ट विक्ट्री वो विक्ट्री होती है जो आप अपने ऊपर अचीव करते हैं, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। मैं ये नहीं मान सकता कि अब मैंने वो जीत हासिल कर ली है। वो चलती रहेगी, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं अपने ऊपर उस विजय को पाने की कोशिश करता रहूँगा और बेहतर सीखने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये वो कहानी है। और हम जितनी कहानियाँ पढ़ते हैं, ये किसी भी और कहानी से बरक्स क्यों है, क्योंकि हम जितनी भी महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि वो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तेज होते हैं, होशियार होते हैं जन्म से ही, कि वो बचपन से ही बड़े होशियार थे। तो कोई भी बच्चा पढ़ता है वो बोलता है अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। तो ये कहानी एक कमज़ोर छात्र की है, कमज़ोर बच्चे की है, कि वो कमज़ोर बच्चा कैसे सीख के आगे कामयाब होता है, ताकि एक साधारण बच्चा जो है वो पढ़ के लगे कि अच्छा अगर ये बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए वो कहानी उस तरीके से मैंने लिखी है, उस कहानी को। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता है, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। तो ये कमज़ोर बच्चा, ये ब्राइट बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग बच्चा, ये जो हम लेबलिंग कर देते हैं, इसके लिए वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं कि हमें ये तो प्रयत्न करना चाहिए कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि उसकी ब्रेन वॉशिंग तो तब से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और ये किसी भी बच्चे को अपने ऊपर जो लुक डाउन करना ना, अपने को इन्फीरियर फील करना, एक हीन भावना जो आ जाती है, वो देना सबसे बड़ा गुनाह है, मतलब किसी बच्चे को। और वास्तविकता में अगर आप दुनिया में भी देखें तो सबसे बुद्धिमान लोग कामयाब नहीं होते, ना सबसे ताकतवर लोग कामयाब होते हैं, एक एवरेज लोग कामयाब होते हैं। मैं ये मानता हूँ हम सबके बीच में और हर बच्चे में एक लूज़र होता है और एक विनर होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ विनर प्रोमिनेंस पा लेता है और थोड़ा सा कामयाब हो जाता है, तो कुछ में वो लूज़र रह जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको मोटिवेशन मिलती है, सही प्रेरणा मिलती है, वो बच्चे उस लूज़र को विनर में कन्वर्ट करते हैं और वो सबसे बड़ा विनर बनता है, क्योंकि वो लूज़र में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एनर्जी है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, वो लूज़र में ज़्यादा है। तो इसलिए वो लूज़र को लेके और फिर उस लेवल पे लेके जाके उसको विनर बनाते हैं, तो वो रियल विनर बनते हैं। तो हमारे को हर बच्चे को इंस्पायर करना है कि वो अपने अंदर के लूज़र को विनर में कन्वर्ट करे। और ये हम समाज में हमारे समाज में सबसे बड़ी जो मेरे को कमी लगती है वो ये कि हम प्रेरणा को कोई महत्व देते ही नहीं है। मैं अमेरिका में था और वहाँ पे उनके एथलीट्स वगैरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई जा रही थी जी। तो वहाँ पे मोटिवेशन को इतना इम्पोर्टेंस होता है कि हर एथलीट को अपने परिवार से, दोस्त से एक व्यक्ति को ले जाने की इजाज़त होती है जो उसको प्रेरित कर सके, स्पेसिफिकली उसी लिए। अगर आप देखें कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही थी तो कर्ण जब भी हुंकार भरता था मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उसका सारथी शल्य बोलता था नहीं तुम अच्छे हो लेकिन अर्जुन ऐसा है, तो उसके अंदर शक आ जाता था। और जब भी अर्जुन हताश होता था तो कृष्ण भगवान बोलते थे तुम सबसे अच्छे हो, तो उसके अंदर जोश आ जाता था। तो प्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ये
किसी स्कूल में मोटिवेशन पे, विजडम पे, इन चीज़ों पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि ये सबसे ज़रूरी है एक बच्चे को सिखाना या पढ़ाना। तो मोटिवेशन मेरे ख्याल से हमारे समाज में उसको अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। कंपटीशन का क्या रोल है एक चाइल्ड की ग्रोथ में? ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं आजकल की इस चीज़ से नहीं मानता कि बच्चों में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनको ये परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन तो अल्टीमेटली कंपटीशन है। आप उसको कब तक बचाओगे? आप उसको 10वीं क्लास तक बचा लोगे, आप उसको 12वीं क्लास तक बचा लोगे, ग्रेजुएशन तक बचा लोगे। जब वो समाज में आएगा तो उसे कम्पीट करना पड़ेगा। उसको आप कमज़ोर बना रहे हो, उसको कंपटीशन से दूर रख के, उसको अल्टीमेटली तो कम्पीट करना ही पड़ेगा। और कम्पीट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वही हमें बेहतर होने के लिए मोटिवेट करता है। आप अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में तो वो इसलिए आता है क्योंकि कोई बच्चा सेकंड आया है। अगर वो सेकंड वाला बच्चा नहीं होता तो ये फर्स्ट भी नहीं आता, उसको वो कंपटीशन चाहिए था आगे आने के लिए। तो वो कंपटीशन हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करता है। अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो फिर हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए बच्चों में कंपटीशन होना मुश्किलें, मैं समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को मुश्किलें, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन वहीं उसको आराम की सुविधाएं देके उसको बहुत कमज़ोर भी बना सकते हैं। तो उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस देना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेरेंट या किसी भी टीचर के लिए। एक और चीज़ है जिसकी हम बोलते हैं जवाबदारी या अकाउंटेबिलिटी। आपको लगता है कि कहीं क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, एक्सेस टू सुविधाएं बढ़ रहे हैं, डू यू फील कि कहीं अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है? ये ज़रूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये सबसे गलत जो हमारे साथ हो सकता है यही हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, आप दुनिया की महंगे से महंगी शराब पी लें, दुनिया का महंगे से महंगा खाना खा लें, कहीं भी खा लें, उससे आप थक जाएंगे, कुछ टाइम के बाद अच्छा नहीं लगेगा खाने के बाद। लेकिन 6 घंटे 8 घंटे धूप में मेहनत करने के बाद जो रोटी खाई जाती है उसका स्वाद अलग होता है। उसका स्वाद दुनिया के किसी भी खाने से बेहतर होता है। या 6-8 घंटे धूप में काम करने के बाद जब आदमी पानी पीता है, उस पानी का टेस्ट दुनिया के किसी भी ड्रिंक से बेटर टेस्ट होता है उस पानी का। तो इसलिए हमें खुद को भी इन सुविधाओं से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ये जो शब्द है हार्ड वर्क, काम, आई थिंक इसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स सुविधाएं तो बदल ही रही हैं, बट कहीं हमारे अंदर भी हाउ वी सी द रोल ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ड्यूटी इन आवर डेली लाइव्स, वो भी चेंज ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है वो। और ज़्यादा सेल्फिशनेस आती जा रही है हमारे अंदर। तो हमारा हार्ड वर्क में विश्वास होना ज़रूरी है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कई बार लोग बोलते हैं कि आराम करो, ऐश करो, लेकिन उससे आप थक जाते हो, पक जाते हो। फिर आपको कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, लगता है क्या कर रहे हैं हम, क्या हुआ मेरे जीवन के साथ। तो वो मेहनत करना ज़रूरी है, वो आपका माइंडसेट है। अभी मेरे को मेहनत करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था। स्पोर्ट्समैन को दौड़ना, 1 घंटा जिम में काम करना, उसको मज़ा आता है उसमें। उसको बुरा नहीं लगता कि अरे 1 घंटा फिर आज करना पड़ेगा, नहीं। वो मजबूरी में नहीं कर रहा है, वेट कम करने के लिए नहीं कर रहा है, वो उसको अच्छा लगता है इसलिए कर रहा है। तो दौड़ना, भागना, वो जो पैरों में दर्द होता है दौड़ने से, जो बॉडी में दर्द होता है, जो थकान महसूस होती है, उसमें मज़ा आता है। तो वो बेसिक कारण है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती। अगर और थोड़ा मुश्किल हो गया तो और बढ़िया बात है, अच्छी बात है अगर मुश्किल हो रहा है तो इसलिए ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, और ये वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना ज़रूरी है। जब आप मेहनत करोगे, सुबह 5 बजे उठोगे, तो आप देखोगे सुबह कितनी अच्छी होती है, सुबह दौड़ने में क्या मज़ा आता है। वो 10 बजे तक, 11 बजे तक सोने में नहीं आता, वही मज़ा। तो वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर, हर चीज़ पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हम कितने खुश इंसान हैं। एक आलसी इंसान हमेशा शिकायत ही करता रहेगा, अरे अब फिर उठना पड़ेगा, अब फिर ये आ गया काम। जबकि एक जो मेहनत करने वाला इंसान है वो खुश रहेगा, वो 4 काम और भी आ जाएंगे, उनको भी कर जाएगा उसी स्पीड के अंदर। तो इसलिए ये हमारे को एक माइंडसेट है जो हमें डेवलप करना चाहिए, और जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतने हम खुश इंसान रहेंगे। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, आपको कितनी जगह में बुलाया जाता है टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। आपको क्यों लगता है, व्हाट पोजीशंस यू स्पेशली टू बी एबल टू इंस्पायर पीपल? पहली बात तो ये है कि जब मैं बोलता हूँ तो लोग ये नहीं कह सकते कि अरे इसे क्या पता ये बोल रहा है। उनको पता है कि इसने दुनिया में, लाइफ में फेस किया है, प्रूव किया है, तब ये बोल रहा है। तो मेरे बोलने को थोड़ा सा अधिक महत्व देते हैं लोग, ऑथेंटिसिटी आ जाती है। हाँ जी। और दूसरा ये कि मैं बहुत स्पष्ट सीधा बोलता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मोटिवेशनल टॉक वगैरह होती है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर उभर रहे हैं आजकल,
मैं बोलता हूँ ये सब प्रोफेशन बन गया अब तो। हाँ, मैं बोलता हूँ ये सब एंटरटेनमेंट है, आपको सुन के अच्छा लगता है, बड़ा मनोरंजन सा होता है, आपको थोड़ी उत्तेजना लगती है, एक दिन आधा दिन याद भी रहता है, फिर आप भूल जाते हैं, बात ख़त्म। जो एक्चुअल मोटिवेशन लाइफ में होती है वो सिर्फ 2 चीज़ों से होती है, वो है फियर और ग्रीड। किसी चीज़ को पाने का लोभ, मैं नेगेटिव टर्म में लोभ को नहीं यूज़ कर रहा, उसको आप भूख कह लें, हंगर कह लें, किसी चीज़ को पाने का लोभ या किसी चीज़ को खोने का भय, ये आपसे जैसे काम करवा सकता है वैसे दुनिया की कोई मोटिवेशन नहीं काम करवा सकती। अगर आपके पीछे टाइगर दौड़ रहा है तो मुझे आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि येस यू कैन रन फास्ट, आप अपने आप तेज़ दौड़ेंगे, वो उसका डर आपसे भगवाएगा। तो इसलिए वो चीज़ होती है। और अब जो बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो आपको कौन सा भय चला रहा है, अगर ऐसी बात है तो मैं किस फियर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक फियर ही काम करवाता है। वो फियर ये है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से न जी पाऊँ, या जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ वो न कर पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये डर मेरे अंदर रहता है। तो जब भी कोई चीज़ मेरे को अपना ज़िंदगी जीने से रोकती है, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ उस चीज़ के टुवर्ड्स, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उसको अपने रास्ते से हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को वो मंसूर नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें, और फिर दूसरा जो मेरा लोभ है वो है मेरी ज़िंदगी से जो मोहब्बत है। तो इसलिए हमेशा यही 2 चीज़ें हमें ड्राइव करती हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन 2 चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। विवेक को अपनी शक्ति बना, संयम को कर प्रबल, विकट स्थिति में रह अपने असूलों पर तू अडिग अचल। जो डगमगा गया अपनी कर्म भूमि पर, वो इंसान ही क्या कहलाएगा। जो चलता रहा तूफानों में, अपनी मंजिल को अंत में वो ही तो पाएगा। कभी यही चीज़ भय और लोभ कैन मेक यू बिकम अ टोटली नेगेटिव पर्सन ऑल्सो। वो है, आप नकारात्मकता या सकारात्मकता किस तरफ आप जाते हैं वो आपको देखना है कि आप उसको, भय से डर के आप रुक भी जाएंगे, आपके अंदर फोबिया हो जाएगा किसी चीज़ का। मेरे अंदर जिस चीज़ का डर आता है मैं पहले उसी चीज़ को हटाता हूँ। मैं गाड़ी को रिवर्स में नहीं ड्राइव कर पाता था शुरू में, तो मैं पहले उसको रिवर्स में ही ड्राइव करता था ज़्यादा, ताकि उसका वो हट जाए मेरे अंदर से। अगर मैं हॉर्स राइडिंग करते हुए मेरे आँख पे घोड़े की लात लगी और ये तकरीबन 28-30 स्टिचेस आए, मेरी पूरी आईलिड स्टिच हुई वापस, तो मैंने वापस जाके उस घोड़े को राइड किया ताकि वो डर मेरे अंदर से हट जाए। ये नहीं हो कि मैं उस डर के अंदर रह जाऊँ उस डर के साथ। तो और भय होगा ज़रूर, डर होगा ज़रूर। आप जब स्काई डाइविंग करते हैं, मैंने स्काई डाइविंग करी है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो व्यक्ति वहाँ एरोप्लेन के दरवाजे पे खड़ा होता है और नीचे देखता है, उसी को पता है कि कैसा डर लगता है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो डर लगना ज़रूरी है, क्योंकि वो डर आपसे मेहनत करवाता है। तभी आप अपना पैराशूट अच्छे से पैक करते हैं और हर चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं 10 बार। तो इसलिए वो डर तो होगा, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपको समझना होता है। राइट नवीन, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे जीवन में होते हैं जब हमारे आसपास भी लोग होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। समटाइम्स इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, समटाइम्स इट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम। तो सपोर्ट, सिंपैथी, सहानुभूति, इसकी कोई लिमिट्स होती हैं? कहाँ तक सपोर्ट पॉजिटिव होता है, बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सपोर्ट नहीं होता उसको? हाउ डू यू बैलेंस दिस? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, ये क्लियर होना मेरे को ज़रूरी है। मेरा अधिकार क्षेत्र ये है कि मैं एक खुश इंसान हूँ, बहुत मोटिवेटेड इंसान हूँ, और मेरे को देख के लोग मोटिवेट होते हैं। जो मेरे से सलाह लेता है, रिसीव करना चाहता है, उसको मैं नहीं भी बोलूँगा तो वो देख के उस चीज़ को पिक कर लेगा, सीख लेगा देख के। मैं ज़रूरी नहीं कि उसको सिखा ही रहा हूँ। जैसे एकलव्य ने सीख लिया, वैसे वो सीख लेगा देख के ही, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा उसको डायरेक्टली। और जिसने नहीं सीखना होगा उसको मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा तो भी नहीं सीखेगा, वो मेरे से लेगा नहीं। तो इसलिए मैं ये समझूँ कि मैं ज़बरदस्ती किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ या किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मैं गॉड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बन सकता। तो मेरा अधिकार क्षेत्र, आपका अगर सगा भाई, दोस्त, मित्र आपकी मदद नहीं लेना चाहता तो आप नहीं कर सकते उसकी मदद, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज यू आर नॉट गॉड, आप नहीं कर सकते। तो एक सेइंग भी है कि भाई गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर वो आपसे नहीं सीखना चाहता तो आप नहीं सिखा सकते। तो मुझे अपनी सीमाएं पता हैं कि मैं हर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ना हर किसी को। मैं वहाँ हूँ, अगर वो मेरे से मदद लेना चाहता है तो मैं हूँ, दैट इज़ ऑल आई कैन डू। उसके बियॉन्ड मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाता, जाके किसी को मदद करने की कोशिश नहीं करता। तो यस, आई एम अवेलेबल देयर टू हेल्प एवरीबडी, एंड जितना मेरे से हो सकता है मैं हमेशा करता हूँ। पर कई बार हम फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि हम सिंपैथी के थ्रू या हेल्प के थ्रू या उसको कर ही सकते हैं। तो हमें वो समझना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है। और कभी कभी किसी को सपोर्ट या सिंपैथी देने के चक्कर में हम उसका जीवन
खुद जीने की कोशिश करते हैं और आई थिंक कहीं उसको फिर वी मेक दैट पर्सन हैंडीकैप्ड, दैट यू आर इमोशनली नॉट एबल टू इवन लिव योर ओन लाइफ देन। बिल्कुल। आप देखिए, मैं बोलता हूँ एक पेरेंट है, एक माता या पिता है, वो अपने बच्चे के सामने एक अच्छा उदाहरण बनता है, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा उदाहरण बनता है। पहली चीज़, उसको अच्छी शिक्षा या अच्छी दिशा देने की कोशिश करता है, उसको देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, ठीक है। लेकिन जहाँ वो इंश्योर करने की कोशिश करता है कि ये ही बनेगा या कामयाब ही होगा, फिर जब फोर्स करने पे आ जाता है, इंश्योर करने पे, तो वो पेरेंट गॉड बनने की कोशिश करता है और वहाँ वो बच्चे के साथ इनजस्टिस कर जाता है। तो इसलिए उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा रोल सिर्फ ये है कि मेरे को एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है और उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है सीखने की, दैट्स इट। उसके आगे उसके ऊपर गॉड बनने की कोशिश ना करें। सेम चीज़ हम जब दूसरे के ऊपर फोर्स करने की कोशिश करते हैं, तब हम सेम गलती हम करते हैं। इसमें कोई फ़र्क है या इसमें बैलेंस कैसे लाते हैं नवीन के, जैसे यू आर ड्रिवन टू परफॉर्म, एनीबडी ड्रिवन टू एक्सेल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। सो सैटिस्फैक्शन या संतुष्ट होने का अचीवमेंट से क्या लिंक है? वो इंडिविजुअली डिज़ाइंड है। अगर आप कोई बिना कुछ अचीव करे भी हैप्पी हो सकता है। सर मैं पहले भी खुश था, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता मैं आगे कहाँ तक जाऊँगा, कितना जाऊँगा, आपको नहीं पता होता। लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में एक ड्राइविंग फोर्स है कि मैं आगे क्या सीख सकूँ। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं सवालों के जवाब ढूंढता था। अब मैं सवाल ढूंढता हूँ, क्योंकि जवाब तो मिल गए, लेकिन आगे सवाल चाहिए, मुझे आगे पता करने के लिए एक और सवाल चाहिए। तो मेरे लिए वो ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन अगर कोई कम करके खुश है या कुछ और करके खुश है, तो मैं ज़बरदस्ती उसको जाके उसकी लाइफ, नहीं तुम ऐसे खुश मत हो, ये करो, ज़रूरी नहीं है। अगर वो खुश है उस चीज़ से, तो वो खुश है उस चीज़ से। जैसे वो एक कहानी भी थी, हमने बचपन में पढ़ी है कि वो राजा को खजाना मिला जंगल में, उसने सोचा मैं चरवाहे को दे दूँ, उसने सोचा मैं बड़ा महानता का काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही उसने चरवाहे को बोला कि मैं आपको ऐसी चीज़ बता सकता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, तो चरवाहा बोलता आप उस खजाने की बात तो नहीं कर रहे कहीं। तो वही भाई वो चरा के ही खुश था, उसको उस खजाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो ज़बरदस्ती मैं उसको देने की कोशिश करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। वो हमारा इंडिविजुअली है, हम क्या करना चाहते हैं, कितना कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो आजकल कौन से सवाल ढूंढ लिए हैं आपने जिनका जवाब तलाश रहे हो? नहीं, अभी रिसेंटली मुझे ये किसी ने पूछा कि भाई हैप्पीनेस क्या होती है, ये सवाल मेरे सामने आया। तो उसका जवाब जिससे पूछा गया उसने बड़े पोएटिकली दिया कि भाई फूलों का खिलना या बारिश या ये। तो मेरे को लगा ये सब तो पोएटिक आंसर है, लेकिन रियल हैप्पीनेस क्या चीज़ होती है, क्योंकि हर इमोशन का कुछ वैल्यू होती है हमारे अंदर, उसका कुछ पर्पस होता है जिसके लिए वो इमोशन होता है। जैसे डर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि हम अपने आप को बचा के रखें चीज़ों से। तो हैप्पीनेस क्या रोल प्ले करती है कि जो कामयाब होता है, विनर होता है, ही फील्स हैप्पी, सो ही वांट्स टू अचीव मोर। वो उसको और ड्राइव करती है आगे पाने के लिए, ये हैप्पीनेस होती है। बेसिक पर्पस हैप्पीनेस ये सॉल्व करती है आगे और पाने के लिए। और फिर सैडनेस क्या होती है? सैडनेस तो आपको ख़त्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। फिर उसका रोल क्या है? उसका भी कुछ तो रोल होना चाहिए लाइफ के अंदर। तो सैडनेस का रोल मेरे को 2-3 दिन सोचने के बाद पता चला कि सैडनेस का रोल एक्चुअली एज एन इंडिविजुअल नहीं है, सैडनेस का रोल एज अ स्पीशीज़ है। क्योंकि सैड कौन फील करता है? सैड एक लूज़र फील करता है, और लूज़र को एक स्पीशीज़ में एलिमिनेट होना होता है। तो इसलिए सैडनेस का पर्पस होता है कि जैसे एक शेर दूसरे शेर से हार जाता है, तो अपनी ट्राइब को छोड़ के चला जाता है और कहीं मर जाता है जाके। तो सैडनेस होती है ताकि लूज़र्स एलिमिनेट हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि हम एक कॉन्शियस बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉन्शियस बीइंग्स, अगर हम सैडनेस से बाहर निकलाते हैं तो हम और स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हैं। और ये हम में एज ह्यूमंस हम में एबिलिटी है सैडनेस से बाहर आने की। तो वो हमें समझना होता है कि सैडनेस हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम किसी सैड स्टेट में हैं, तो उससे अगर हम बाहर निकलाएंगे तो हम और स्ट्रॉन्ग बन के उभरेंगे। सोशल चेंज जिस पे आप काम भी करते हैं, जिसकी हम सब उम्मीद भी रखते हैं, जिसका हम सब हिस्सा भी हैं, सोशल चेंज कैसे आता है? सोशल चेंज जो मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल लीडर समाज को वो ये तो बोल सकता है कि गवर्नमेंट गलत है, ये वाली पार्टी गलत है, पुलिस गलत है, लेकिन वो कभी लोगों को ये नहीं कह सकता कि तुम लोग गलत हो। क्योंकि अगर वो लोगों को कहेगा तुम गलत हो तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो ये कभी नहीं कह सकता। एक सोशल लीडर जिसके अंदर ये लालच नहीं है टिकट पाने का या सीट पाने का या जीतने का, वो लोगों को कह सकता है
अन्ना हजारे लोगों को बोल सकता है कि तुम लोग गलत हो। महात्मा गांधी बोल सकते हैं कि पीपल यू आर रॉन्ग, लेकिन एक पॉलिटिशियन नहीं बोल सकता कि पीपल यू आर रॉन्ग। सो ज़रूरी है कि इन ये पावर चीज़ों से हट के हम समाज में काम करें, ताकि हम समाज में जो गलतियां हैं उनको बता सकें कि भाई यहाँ तुम गलत हो, ये तरीका नहीं है करने का, ऐसे नहीं काम होता। तो वो हमारे को करना ज़रूरी है। और मैं उस पर ये एक मुश्किल काम है, ये मुश्किल है क्योंकि इसमें अटेंशन नहीं मिलती आपको आसानी से, लेकिन फिर किसी को मुश्किल चॉइसेस भी तो करनी है। तो हम में से ये मुश्किल चॉइसेस करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना है। एक एक व्यक्ति को जाके, अब हम में से कितने लोग हैं जो गांव में जाके काम करने को तैयार हैं? गांव में जाके जब तक हम इंडिया को या हमारे देश को इंडिया गेट पे नहीं सुधारा जा सकता, उसको गांव में सुधारा जा सकता है। तो वहाँ गांव में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? 60 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, वहाँ कौन जाके काम करेगा? जहाँ मीडिया नहीं नोटिस करेगा, जहाँ आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे, वहाँ जाके कितने लोग काम करने को तैयार हैं? तो वहाँ जाके अगर युवा लोग काम करने को तैयार होंगे, तब समाज परिवर्तित होएगा। आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे और निजी स्तर पे सोशल चेंज जो आता है, ये कैसे आता है? ये हर व्यक्ति को ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं ये सोचूं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, तो मेरा वो नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को ये सोचना है। और हर व्यक्ति को यही सोचना है कि वो अपने स्तर पे क्या कर सकता है। क्या वो एक फेंके हुए कागज़ को सड़क पे से उठा सकता है? अगर वो उतना भी कर सकता है तो वो उसे करे। हम सब क्या होता है कि हम सोचते हैं एक दिन हम ना इनकलाब ले आएंगे और दुनिया को बदल देंगे, और उस एक दिन के इंतजार में हम कुछ नहीं करते, छोटा काम हम करते ही नहीं। अगर हम थोड़ा करें तो इनकलाब खुद ही आ जाएगा। तो वो थोड़ा जो हम सब कर सकते हैं इंडिविजुअली, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अभी लोग बोलते हैं कि पुलिस करप्ट है, मैं बोलता हूँ समाज करप्ट है। जब पुलिस वाला आपको रोकता है चालान करने के लिए, वो तो चालान की पर्ची काट रहा होता है, आप बोलते हो भाई कुछ ले दे के माफ़ कर, आप पीछे पड़ जाते हो उसके, तो आप करप्ट हो, वो करप्ट नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी थोड़ी सी असुविधा हटाने के लिए मतलब सोचते हैं 100 रुपये दे दें तो हमारी थोड़ी असुविधा हट जाएगी, तो हम करप्ट हैं ना। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि हम इंडिविजुअली अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है समाज को बदलने के लिए या एक बेहतर समाज बनाने के लिए। That means what can the individual do rather than एक बड़ी सी चीज़ और वेट फॉर इनकलाब आएगा and that change will come, right? तो ये मीडिया जो स्टोरीज बनाता है, सो मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल, सेंसिटाइजेशन, एडवोकेसी, स्प्रेडिंग द मैसेज। आपको क्या लगता है कि रोल ऑफ द मीडिया अभी क्या है और चेंज फॉर द बेटर कैसे हो सकता है? मीडिया का रोल एक टीचर का रोल है, और टीचर को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और सही दिशा भी बताना पड़ती है। कई बार कुछ मीडिया चैनल्स पे जब ये आरोप लगाया जाता है कि भाई आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो बोलते हैं हम तो वो दिखा रहे हैं जो लोग मांगते हैं। सीधी बात है। तो भाई लोग तो बहुत ख़राब चीज़ें भी मांगते हैं, लोग तो ड्रग्स भी मांगते हैं, लोग तो अल्कोहल भी मांगते हैं, लोग तो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो आप जो लोग गलत चीज़ें वो सारी प्रोवाइड कर दो फिर उनको, बिकॉज आप टीचर हो, यू हैव टू गिव देम अ डायरेक्शन ऑल्सो, यू आर इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। यू कैन नॉट स्पीक लाइक अ दुकानदार कि भाई जो लोग मांग रहे हैं मैं तो वो बेच रहा हूँ। It cannot be like that, you have to. So media has to play that role of a teacher, to give that right direction to the people rather than to just go with the flow kind of thing. वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की पहचान होती है। उसमें मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, सबको पता होती है। अगर आप देखें, मैं कुछ चैनल्स BBC, अल जज़ीरा एंड ऑल में देख रहा था, तो कितना न्यूट्रल वे में वो प्रेजेंट कर रहे थे न्यूज़ को। इट वाज रियली वंडरफुल टू सी दैट, हाउ न्यूट्रली दे वर प्रेजेंटिंग द न्यूज़। दैट वाज वंडरफुल एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी कि हम लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं। एक सोशल लीडर, एक मीडिया, एक गवर्नमेंट, इनको इवन पॉलिटिशियंस, दे शुड सी देमसेल्व्स एज टीचर्स, नॉट एज पॉपुलरिस्ट, कि भाई जो पॉपुलर चीज़ है वो बेचो काइंड ऑफ थिंग करके। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हुआ अगर मैं नेता नहीं बन सका, क्या हुआ मैं अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका, कम से कम मैं समाज को जो भी थोड़ा दिया एक सही दिशा तो दिया। वो बनना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, ज़रूरी ये होना चाहिए कि मैं जो थोड़ा सा भी मैं दे के गया वो एक सही दिशा थी। कम से कम ये संतुष्टि होना ज़्यादा आवश्यक होना चाहिए हमारे लिए। आजकल क्या लिख रहे हो आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये हमेशा रहता है कि जो भी लिखूँ उसमें क्वालिटी हो, वो सुनने वाले को अच्छा लगे। जब मैंने रिकॉर्ड बनाया तो लोगों ने बोला जल्दी से किताब लिखो,
क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनल कवर कर रहे हैं। मैंने बोला जल्दी नहीं लिखूँगा, जब लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा जिसको पढ़ के लोगों को अच्छा लगे, तब मैं लिखूँ, नहीं तो नहीं भी लिखूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैंने भी किताब नहीं लिखी तो इसलिए मेरे को 7-8 साल लगे वो लिखने में। तो सिमिलरली पोएम भी मैं तभी लिखता हूँ जब मेरे को लगता है कि ये सुनने वाले को अच्छा लगेगा। तो कुछ लिखा है जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जो टाइटल पोएम है मेरी हिंदी बुक की, वीर उसको जानिए, वो टाइटल पोएम की कुछ लाइन्स आपके सामने सुनाता हूँ। जी। न करे विचलित मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए, विवेक को अपनी शक्ति बना संयम को कर प्रबल, विकट स्थिति में रह अपने असूलों पर तू अडिग अचल, जो डगमगा गया अपनी कर्म भूमि पर वो इंसान ही क्या कहलाएगा, जो चलता रहा तूफानों में अपनी मंजिल को अंत में वो ही तो पाएगा, संकट जिसकी शक्ति बने आंधी न जिसको हिलाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए, जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, वो इंसान ही क्या जिसे अपने होने पर नहीं अभिमान है, 4 दिन आगे 4 दिन पीछे हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा, 4 दिन में जो कर गया कुछ वो ही तो महान कहलाएगा, ना करे विचलित मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। वंडरफुल। इतनी पैशन से लिखते हो नवीन, जब शब्द आप में आते हैं तो इज इट ऑल एक्सपीरियंशियल, फुल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा ये है, मैं झूठ नहीं बोल पाता, तो मेरे को जो आता है मैं तभी लिख सकता हूँ, या जिसमें मेरा विश्वास है मैं उसी चीज़ को, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि विश यू अ ब्यूटीफुल लाइफ, क्योंकि मेरे विश करने से नहीं होएगी, मैं बोलता हूँ इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो है, मेरे कहने से नहीं होने वाली। तो इसलिए मैं जिस चीज़ में सिर्फ विश्वास करता हूँ तभी उस चीज़ को लिख पाता हूँ। तो अगर वो थॉट आती है तो वो तभी आ पाती है अगर वो अंदर से आए और उसमें मेरा विश्वास हो उस चीज़ के अंदर। आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या मायना है? पास्ट में से कभी रिग्रेट्स नहीं कैरी करने चाहिए, हमेशा लेसन्स कैरी करने चाहिए। कई बार हम रिग्रेट करते रहते हैं, पास्ट में ये हुआ, मैं अपने जीवन में किसी चीज़ को बदली नहीं करना चाहता। अगर मुझे दोबारा 100 बार भी इस जीवन को जीने का मौका मिला तो मैं सारी वही चॉइसेस करूँगा जो मैंने इस जीवन में करी, मैं उसी ऑब्स्टिकल कोर्स पे से फिर भागूंगा। अगर मुझे ये फिर भी पता भी हुआ कि मुझे फिर वही चोट लगेगी तो भी मैं दोबारा उसी पे से भागूंगा। तो मेरे को अपने लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है, पास्ट में से कोई रिग्रेट्स नहीं कैरी करनी चाहिए, सिर्फ लेसन्स कैरी करने चाहिए, और वो भी मेरा ही हिस्सा है, मेरा पास्ट मेरा हिस्सा है तो उससे भी मेरे को मोहब्बत है। जो प्रेजेंट है वो मेरा लर्निंग है, जो मैं सीख रहा हूँ। और हमारे जीवन में चाहे हम 100 साल के हो जाएं, देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसके बारे में हमारी उम्मीद रहती कि ये हम करेंगे, ऐसा हम करेंगे, ऐसी हमारे अंदर फीलिंग रहती। तो आगे देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग ब्यूटीफुल टू लुक फॉरवर्ड टू। वो मिलेगी नहीं मिलेगी उससे मतलब नहीं, बट एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। जज्बा, जुनून, पैशन, ये सब पैदाइशी होती हैं कि हम लोग इनको अक्वायर कर सकते हैं लाइफ में? ये सब डेवलप होती हैं। आप जैसी जैसी चीज़ सोचते जाते हैं वैसे वैसे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते जाएंगे, कई बार लोग बोलते हैं आप इतने पॉजिटिव इंसान कैसे रहते हो, तो एक तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी तो दुकान ही यही है, मैं काम ही यही करता हूँ, तो मेरे लिए आसान है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी से बात करता हूँ तो भी पॉजिटिविटी की करता हूँ, मैं अगर सुनता हूँ तो भी ऐसी चीज़ें ही सुनता हूँ, मैं नकारात्मक चीज़ें नहीं सुनता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ तो ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं दोस्त ऐसे रखता हूँ, दोस्तों से भी ऐसे से मिलता हूँ, मैं जगह में भी ऐसे ही रखने की कोशिश करता हूँ जो कि पॉजिटिव जगह हो, मैं एक्टिविटीज़ वो करता हूँ जो पॉजिटिविटी देती हैं। तो मैं अपने आसपास पॉजिटिविटी का ऐसा पहाड़ बना लेता हूँ कि उसके अंदर नेगेटिविटी को घुसने का स्कोप बहुत कम रहता है। तो ये हमें करना होता है कि पॉजिटिविटी की हम एक पहाड़ बना लें अपने चारों ओर, जिससे कि नेगेटिविटी हमारे तक पहुँच ना पाए। तो जब आती है भूली भटकी तो उससे क्या बोलते हैं आप? नहीं, वो इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिविटी होती है। हमें से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे मैं बड़ा समझदार हूँ, मेरे को नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर सकती।
लेकिन कोई कितना भी समझदार हो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पे असर कर ही जाएगी अगर आपके आसपास है। उसको अपने आसपास आने ही न दो। जैसे आर्मी में बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंस होते जी। हैं, ऐसे 7-8 लाइन ऑफ डिफेंस होने चाहिए ताकि वो आप तक पहुंच ही ना पाए नेगेटिविटी। कभी भी जीवन में आई थिंक निराश हो, सैड हो या सोचें कि आगे क्या, आई थिंक आपका एक नाम, आपकी थॉट एंड आपकी विचारधारा बहुत प्रेरित कर रही है हम सबको। बट नवीन, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और बहुत प्रेरणा मिली आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। राह चलते मिट गई आस वो तू नहीं, कदम तले जो दब गई घास वो तू नहीं। समय से पहले बुझ गई प्यास वो तू नहीं, आंधी में बिछ गई कपास वो तू नहीं। विराट एक वृक्ष तू शक्ति से समृद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। आंधियां चल रही राह है खल रही, आंधियां चल रही राह है खल रही। हिम्मत आंखें मल रही लौ फिर भी जल रही। हार को न मान तू राह को पहचान तू, हार को न मान तू राह को पहचान तू। सृष्टि का अभिमान तू है वही इंसान तू। साहस से संकल्प कर विश्वास तेरा दृढ़ है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है।